So we can start, sir. Good to go, sir. Okay, thank you, sir. Hello, everyone. Welcome to ICRA IS, and this is yet another lecture on the current affairs. And my name is Vijay Tripathi, and today is the 10th lecture of current affairs. So we need to. We already discussed the importance of current affair. आप लोग के साथ डिस्कस किया कि क्यों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उसका नीड क्या है, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है. बट ओवरऑल करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर दिस यूपीएससी प्रिपरेशन टू ट्राई टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स एज वेल एज योर बेसिक इशूज. आज हम लोग टॉपिक लेंगे न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट. तो देखिए, जैसे कि आपको न्यूज पढ़ते हैं, जैसे एक न्यूज आया कि एक न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट हुआ. आप न्यूज पढ़ेंगे, फ्रांस में हुआ, ये गए, ये आए, ऑल दीज पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट, ऑल द कंट्रीज एंड ऑल रिप्रेजेंटेड इन इट. सो वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिल गया. बट यू हैव टू एनालाइज the need for such pact, the need for such meeting, the need for such convention, so that you get a better understanding कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, मीन्स what all countries are up to. Okay, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट. सो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ फ्रांस में ये हुआ था, इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज था. इसमें अब नाम से क्या लग रहा है, ये कुछ ऐसा पैक्ट था जो कि ग्लोबल फाइनेंस से रिलेटेड है, some pact related to global finance. So here you need to we will discuss few aspects of global finance. What was the need of this pact? Why we need some different financial structure in the current scenario? तो एक background discuss करते हैं. So if you after 1945 means World War II का end हुआ, World War II का end हुआ 1945 में. इसके बाद क्या आप देखते हैं, there is a start of Cold War. Cold War between US dominated bloc and Russia dominated bloc. Okay, so US versus Russia एक Cold War चला. So during this Cold War, US was for like capitalism and Russia was for, you can say, communism. So US जो है, US was trying to halt the spread of communism and spread the ideology of capitalism. So this was the goal. So US created two, basically it was not created by US, but it was dominated by US. US created two structures, IMF and World Bank. तो उस समय का जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, वो डोमिनेट कर रहा था IMF और वर्ल्ड बैंक से. IMF और वर्ल्ड बैंक क्या करते थे कि दे यूज टू प्रोवाइड, जो प्लीज डाउट्स जो है विल टेक इन द लास्ट, और सोशलिज्म कम्युनिज्म, यस, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म दे आर बिट डिफरेंट, वी विल डिस्कस. तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, IMF और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा था कि दे यूज टू प्रोवाइड लोन्स, चीपर लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज. पूरी कहानी को आराम से समझिएगा, एक कहानी के तौर में है. दे यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, बट ये लोन जो है वो फ्री में तो देते नहीं थे वो लोग. What in return they should adopt this capitalist model. They should adopt the capitalist model. So gradually बहुत सारे countries जो है आने लगे उसमें. इसी समय इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया. ठीक है, तो इंडिया started this non alignment movement, and we multiple countries they adopted this capitalism, and multiple countries also went to towards Russia. Okay, so this was the tussle going on. This was a financial architecture going on during this period, during 1950s, 60s. Okay, but अगर आज का हम context देखें, if we look at today's context, today's financial architecture, तो आज जो global financial status है हमारा, global financial status जो हमारा है, उसको अगर आप एनालाइज करें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटस को, तो यू विल फाइंड मल्टीपल डेंट इन दिस प्रेजेंट आर्किटेक्चर. जो अर्लियर आर्किटेक्चर था IMF एंड वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड, उसमें मल्टीपल डेंट, बहुत सारा उसमें डेंट लग चुका है. कैसे? लाइक currently we are witnessing the rise of India, rise of China, rise of this Brazil, you can say BRICS, rise of BRICS. Then we are witnessing this pandemic. Then we are also witnessing this Russia-Ukraine war. Then we are witnessing this inflation.
So climate change, then debt ridden developing countries. So multiple things we are witnessing today. So जो present global financial status हमारा है देखा जाए तो उसमें there are multiple issues that are going on. So if we talk about this India, this rise of BRICS, तो आज आप देखते हैं जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया, तो मल्टीपल थिंग्स जो है वो आए, तो IMF और वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड जो स्टेटस था धीरे धीरे वो हो रहा है. और उसके बाद पैंडेमिक में भी बहुत सारा इश्यूज हुआ, मल्टीपल कंट्रीज went into this depression, recession, everything. So उस पे बहुत सारा डेट चढ़ा. Then Russia-Ukraine crisis is already creating a very big very big dent in the current global flow of the trades, goods, services. Inflation, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इन्फ्लेशन के मार से झेल रहे हैं. देन क्लाइमेट चेंज तो एक ऑलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. इसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रस्साकसी हो रही है. मल्टीपल कन्वेंशंस आर बीइंग डन, मल्टीपल COPs आर देयर whereby we are discussing about the financial climate finance. We are discussing the climate finance. देन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डेट ले चुके हैं. जैसे चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी देखिए आप, चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. तो इससे हो क्या रहा है कि ये जो पैक्ट हुआ था, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट जो हुआ था, उसमें क्या है, उसमें ये सब मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर डिमांडिंग some relaxation, they are demanding something from the developed countries. जैसे कि if we talk about this climate change, then right from the start, like UNFCCC, Kyoto Protocol, then Paris Agreement, every convention talked about this money. Why they talked about this money? Because due to this common but differentiated responsibility. Means countries have common responsibility. But difference means common responsibility कैसा, सबका responsibility है ये climate change को tackle करने का, सबका responsibility है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक country इसको नहीं करेगा. But that responsibility must be differentiated based on the previous context. Like अगर 1760 से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो रहा है, तो 1760 से 2023 तक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, they got enough room, enough time to develop themselves. तो उस जब वो डेवलप कर रहे थे तो they were also engaged in this emission of greenhouse gas. No one was there to check them. उस समय तो कुछ नहीं था, UNFCCC नहीं था, उस समय क्योटो प्रोटोकॉल नहीं था, उसमें पेरिस एग्रीमेंट नहीं था कि उनको वो चेक करता कि भाई तुम इतना इमिशन मत करो. आप जब पढ़ेंगे लंदन टाइप, एक स्मॉग का नाम रख दिया गया, लंदन टाइप स्मॉग. आप जब पढ़ेंगे अपना एनवायरनमेंट उसमें लंदन टाइप स्मॉग आप देखेंगे. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मींस ये लोग जो है उनको कोई चेक नहीं किया. अब आज वो डेवलप हो चुके हैं, दे आर वेल डेवलप्ड, दे हैव वेरी कंफर्टेबल लाइफ, हाई पर कैपिटा इनकम. नाउ दे आर प्रीचिंग कि नहीं, वी शुड आल्सो फॉलो दिस norms for climate change. We should also follow the norms for climate change. Means everybody should have the similar responsibility. तो ये तो सही नहीं है, because India जो कि late start किया. If we take the example of India, then India started only after 1947. अब कायदे से देखा जाए तो only after 1947 we got our constitution, we became a democratic country, we became independent, and only after that we developed ourselves. And अगर सही मायने में देखा जाए तो we only developed for say 40-50 years. तो दिस 40-50 years का जो डेवलपमेंट है वो आप 200-250 साल के डेवलपमेंट से इक्वेट नहीं कर सकते. स्टिल वी नीड टू गो वे बियॉन्ड. वी नीड टू गो एटलीस्ट अप टू 2050-70 हम लोग को डेवलप होना है. Then only we will be able to increase our per capita income. We will be able to increase our HDI. If you take the example of this electricity, average Indian consumes 1/10 of the power as far as US is concerned. Means अगर कंपेयर करते हैं US से तो we consume only 1/10 of the power. तो सोचिए US में और इंडिया में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन में कितना डिफरेंस है. एंड दिस पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू HDI. So we need that space, we need that room to develop. So how we will get that room? So that's why we agreed on common but differentiated responsibility. Means responsibility shall be common for everyone, but that must be differentiated according to their level of development, according to their need. So
इंडिया का आपने एग्जांपल समझा, मींस इंडिया के पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कर्बिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बट इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट मस्ट बी एक्सटेंडेड। मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको 10 साल का टारगेट आप दे दीजिए कि इस 10 साल में भाई अपना काम करो, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इंडिया मस्ट बी गिवन इनफ टाइम, इनफ स्पेस, इनफ रूम टू डेवलप इटसेल्फ। ठीक है, तो एक ये चीज। दूसरा चीज, मतलब एक टाइम फैक्टर समझ लीजिए आप। दूसरा चीज देखिए कि देर आर मल्टीपल स्मॉल आइलैंड नेशंस, they have no role in this climate change, very minuscule role in this climate change, these small island nations, and these small island nations are paying the price, means दो पहले नंबर पे है जिनको जिनको इफेक्ट कर रहा है। why? Because these small island nation, वो जो सी लेवल का राइज होगा तो डूब जाएंगे सब। so even though they have not done anything wrong in the past, then they are facing the this havoc of threat of climate change। so जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनकी क्या गलती, तो उनके लिए भी कुछ स्पेस होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा हो तो उसमें एडाप्टेशन और मिटिगेशन, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाना है, अगर आप बात कर रहे हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर ले आना है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द एग्रीकल्चर, देन ऑल दिस रिक्वायर मनी, all these things require money, and from where that money will come? If suppose some country is still developing, so they have their own priority, they will spend, there is a curve, this production possibility curve, in economics we will read it, this production possibility curve. So if you suppose this curve shows expenditure on education, and this curve shows expenditure on food, so if you increase the expenditure, if you have limited resources, if any country have limited resources, so if they increase the expenditure on education, then expenditure on food will decrease. Now if they increase the expenditure on food, then the expenditure on education will decrease. So India जो कंट्री है उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग को बहुत कुछ अभी करना है। we are still trying to end our poverty, we are still trying to provide universal education, we are still trying to provide this universal healthcare, and multiple things are to be done. So India जो कि अब climate change पे अगर most of the fund अपना divert करने लगे, so it's not fair. So जो developed countries हैं, developed countries, they have some moral responsibility. This is the moral obligation of the developed countries. Since they are developed, so they must provide some fund. They must provide some fund. और इस फंड की चर्चा बहुत बार की गई, पेरिस एग्रीमेंट में, क्योटो प्रोटोकॉल में, UNFCCC में बहुत बार की गई। सो दिस फाइनेंसिंग जो समिट जो हुआ है, ये फाइनेंसिंग समिट इसलिए हुआ है कि इन सब चीजों पे बताया, एक नजर डाला जा रहा है कि ऑल दिस थिंग्स आर देयर। पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक में बहुत सारे कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज जो है वो बहुत उनका फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो गया। इन इंडिया वी आल्सो विटनेस नेगेटिव ग्रोथ। सो सी इंडिया जो कितना रोबस्ट इकोनॉमी है, इट आल्सो विटनेस नेगेटिव ग्रोथ। So the developing countries, they are asking for some concession, and these concessions are not like those. Means they are asking their right कि ये हमारा right है, you should provide some relaxation. So उसके जो ये summit हुआ उसमें क्या हुआ था, एक ब्रिज टाउन इनिशिएटिव लिया गया। ब्रिज टाउन इनिशिएटिव, you can just note down the name, ब्रिज टाउन इनिशिएटिव हुआ, ठीक है। तो ये जो ब्रिज टाउन इनिशिएटिव हुआ, इसमें क्या हुआ कि बारबाडोस जो है, बारबाडोस एक कंट्री है, वो उससे इनिशिएट किया है ब्रिज टाउन इनिशिएटिव। तो वो लोग बात क्या कर रहे थे, कुछ मेजर पॉइंट हम लोग देखते हैं। वो ये बात कर रहे थे कि जो $100 बिलियन का जो SDR का वादा किया गया था, इट वाज प्रॉमिस दैट 100 बिलियन वर्थ ऑफ SDR शैल बी फ्लोटेड, तो उसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। सो दिस SDR मींस स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय, इज रिलेटेड टू IMF। थोड़ा सा इसको बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझ लेते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। Special drawings are like, but they are not the first two things you should remember. It is not a claim on IMF, पहला चीज, and it is not a currency. Means these two things you must be clear with. It is not a claim on कि आप जाके बोल देंगे नहीं मेरा तो हमको चाहिए ये ना, वो नहीं हो सकता। और दूसरा ये करेंसी नहीं, ये दो चीज अभी दिमाग में रखिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो each member country of IMF, they are given some amount of SDR, means उनका कुछ एक शेयर होता है SDR में। बहुत ही सिंपलिस्टिक लॉजिकल वे में समझा रहे हैं।
एक SDR का कुछ शेयर होता है, तो समझिए इंडिया है, बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक स्टेटस, बेस्ड ऑन मल्टीपल अदर फैक्टर्स, इट हैज बीन एलोकेटेड सम अमाउंट ऑफ SDR। तो वो SDR को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो SDR को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वो पैसा को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नीड के लिए, किसी भी तरीके के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन पैसा फ्री में आता नहीं है। तो देखिए SDR का दो कंसेप्ट होता है, एक SDR एलोकेशन होता है, एक SDR एलोकेशन और एक SDR होल्डिंग होता है। SDR एलोकेशन एंड SDR होल्डिंग। सो क्या होता है, जनरली सारे कंट्रीज का जो एलोकेशन है, एलोकेशन इज इक्वल टू होल्डिंग। इससे होता है, देखिए एलोकेशन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एलोकेशन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और होल्डिंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है। होल्डिंग में मान लीजिए 100 रुपए का लोकेशन है, देन देयर विल बी 100 रुपीज वर्थ ऑफ होल्डिंग। सो अगर आप इंटरेस्ट 10% है, इफ यू आर पेइंग 10 रुपीज allocation, then you are also getting 10 rupees as an interest rate on the holding. So net effect is 0%, means you are neither paying interest rate nor you are getting, if your allocation is equal to SDR. Now if this allocation and holding it mismatches, then you have to pay the interest rate. You have, suppose if your allocation, you are paying interest rate in allocation and you are holding, if your holding decreases, if your holding decreases, अगर ये डिक्रीज करता है, देन you will pay net interest rate. You will pay because you will get lesser interest rate because you have lesser holding. And if means holding decrease होने का मतलब क्या है, you are utilizing that money for your own purpose. So पहले मान लीजिए आपका 100 रुपया allocation था आपके पास and 100 rupees holding. Now 50 rupees you used for your personal whatever you wanted to do. Now there is a mismatch, means you have to pay 10% interest rate. So then you have to pay 10 rupees on the allocation, and but you will get, because you have only 50 rupees left in your holding, so you will get 5 rupees net, you are paying 5 rupees interest. So this is the concept of SDR. every country, सब country के पास होता है, ठीक है, SDR. तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो ये ब्रिजटाउन इनिशिएटिव है, उसमें ये कहा गया कि जो SDR होल्डिंग का यू प्रॉमिस दैट देयर विल बी दिस अमाउंट ऑफ SDR allocated, so you should just release it. IMF से बोल रहे हैं ये करो। ऐसे ही जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में और बहुत सारे एग्रीमेंट में क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई थी कि 100 बिलियन इकट्ठा किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। दे आर आल्सो सेइंग, भाई रिलीज कर दो। अदर थिंग दैट व्हाट दे आर डिमांडिंग, दैट जो डेट है, डेट को रीस्ट्रक्चर करो, रीस्ट्रक्चर, डेट मस्ट बी रीस्ट्रक्चर्ड। रीस्ट्रक्चर्ड मींस इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दो, tenure, you should increase the tenure. Why they are asking all these things? Because of this flux that is going on currently in the world, that we discussed, that these things, new architecture, this pandemic is going on, and Russia-Ukraine war, inflation, climate change, everything. So they are overburdened. Developing countries are overburdened. So they are asking for some relaxation. They are asking for some relaxation, some breathing space. And it is the moral responsibility of the developed countries to provide them the breathing space. So this was in news. This was in news, and why it was in news? Because of these issues. तो आप सिर्फ वो पढ़ करके कि कहाँ पे हुआ ये और ये कौन सा कंट्री है और ब्रिजटाउन इनिशिएटिव पढ़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यू शुड गेट टू द कोर ऑफ द टॉपिक। अच्छा, इसलिए हुआ है, ये सारे इश्यूज चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में, तो ये सब की वजह से ये ब्रिजटाउन इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तो ये इस ब्रिजटाउन इनिशिएटिव में बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज क्या करें, डेवलपिंग कंट्रीज आर आस्किंग फॉर दिस इनिशिएटिव। तो उसके बाद क्या हुआ, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो इस इनिशिएटिव का अगर देखा जाए आउटकम क्या हुआ, इस इनिशिएटिव का आउटकम क्या हुआ, वो जैसे कि मान लीजिए एक हुआ कि वर्ल्ड बैंक बोला कि भाई ठीक है हम एडिशनल लैंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, वर्ल्ड बैंक बोला हम एडिशनल लैंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, एडिशनल लैंडिंग। IMF बोल रहा है कि ठीक है भाई हम $100 बिलियन का जो SDR था उसको भी ओके कर देंगे। तो दे मेड सम प्रोमिसेस कि लैंडिंग दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ऑल दिस प्रोमिसेस, इन ऑल दिस प्रोमिसेस व्हाट यू विल विटनेस कि नॉट इवन अ सिंगल डॉलर वाज given by the developed countries to developing countries. This is a loan, this is also a loan. So they are committing if we will do this, but they are giving loan ultimately. So they are not giving they have not given a single dollar in via this. They have not committed a single dollar कि हम अपने जेब से दे रहे हैं। No, if you want then you can take loan. So that's why developed countries have a responsibility. Developed countries have a responsibility to help the developing countries or to help the small island nations that are being disproportionately affected by the climate change, because no one else can help them. Okay, because we need them for adaptation as well as mitigation. Both these things are very important to deal with the climate change. So this was in news. So this is very important concept that was in news. Okay. Now, if we look at another few important articles, then
there is a World Bank report on subsidies and climate change. World Bank report on subsidies and climate change. So what World Bank has drawn attention, World Bank कहा कि देखो भाई subsidies बहुत ज्यादा, कितने की subsidies? Worth of 8% of the global GDP. वर्थ ऑफ 8% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है वर्ल्ड में. वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड अराउंड द कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग वर्थ ऑफ 8% अप टू $7 ट्रिलियन. समझ लीजिए कि मोर देन डबल ऑफ व्हाट इंडिया जीडीपी इज. सो वर्थ ऑफ दिस इतना सब्सिडी. कहाँ सब्सिडी मेनली जा रहा है? दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्रीकल्चर सब्सिडी, देन फ्यूल का सब्सिडी जा रहा है, फिशरीज में सब्सिडी जा रहा है, ऑल दिस they have pointed out कि okay, all these subsidies are being provided which is not efficient. Government should rethink it. Like fuel का subsidy, government should rethink. तो ये जो, लेकिन एग्रीकल्चर सब्सिडी, अब एग्रीकल्चर सब्सिडी के पे बात की जाए, एग्रीकल्चर सब्सिडी पे, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी पे एक इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो क्या है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. WTO का ये एग्रीमेंट है. तो अगर आप एग्रीकल्चर सब्सिडी देखिए, वर्ल्ड बैंक का न्यूज आया, अगर आप एग्रीकल्चर सब्सिडी देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर सब्सिडी में अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, देन देयर इज अ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. इट वाज नेगोशिएटेड अंडर द WTO. ओके, so agreement on agriculture talks about mainly three boxes like amber box, green box, and then blue box. But you just remember the subsidies mentioned in the amber box are prohibited. Subsidies mentioned in the amber box are prohibited. Okay. Subsidies mentioned in the green box are permitted, and blue box is simply known as amber box with some condition. Okay. So this amber box subsidy means जो directly production से relate हो. You are directly incentivizing the crop. Okay, if you produce this, you will get this amount of subsidy. So as सारा productivity जो directly production से relate हो, उसको amber box में डालते हैं. ऐसे ही अगर research and development के लिए subsidy दे रहा है government, तो it will be put in the green box. So there are multiple types of subsidies. So amber box subsidy जो है वो ban है भी. ठीक है, means ban क्या है? वो allowed नहीं है. लेकिन इसमें 10% एक de minimis clause है. de minimis clause. तो de minimis clause क्यों दिया गया? Because of India's food security जो प्रोग्राम चल रहा है, वो जो है वो फूड सिक्योरिटी और MSP जो प्रोग्राम है वो हमारे एम्बर बॉक्स में जाता है. तो डेवलप नाउ अगेन देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज एक ब्रीदिंग स्पेस मांग रहे हैं. Developing country like India, they are asking for a breathing space. क्योंकि give me this breathing space because lots of poor population are residing in our country and we need to provide them subsidized grain. So you should not dictate us. ये हम पे डिक्टेट मत करो मेरे पे कि कैसे होगा. लेकिन ये सब्सिडी को वो लोग वो क्यों करते हैं कि मना क्यों कर रहे हैं? सब्सिडी इनएफिशिएंट है. तो इसमें अगर आप गेस करिए कि सब्सिडी को जनरली क्यों डिस्करेज किया जाता है. तो इंडिया में हम लोग सब्सिडी देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप को मिलता है? 22+1 शुगर केन, 22+1 इतने क्रॉप को मिलता है. कौन रेकमेंड करता है? CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इस पे डिसीजन लेता है. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करता है? सब्सिडी देता है, सब्सिडाइज करता है. ओके, तो देखिए सब्सिडी देने का मतलब सब्सिडाइज कैसे करता है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसको, और पीडीएफ में भी सब्सिडी मिल जाता है. अब सब्सिडाइज कैसे कर रहा है? जैसे देखिए, अगर क्रॉप का मार्केट रेट ये है और मार्केट रेट अगर फेल और MSP मान लीजिए ये है, ये लेवल, और मार्केट रेट इसके नीचे चला गया, तो भी क्या है, गवर्नमेंट इसी रेट पे खरीदेगा, MSP के रेट पे खरीदेगा. तो इन अ वे सब्सिडाइज कर रहा है. तो देखिए सब्सिडी जो है वो क्यों खराब होता है, क्यों डिस्टॉर्टिंग. वो कहते हैं कि सब्सिडीज डिस्टॉर्ट ट्रेड. जनरली जो है सब्सिडी जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है. तो क्यों सब्सिडी को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है? इसको ध्यान से देखिएगा. देखिए अभी जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि कैपिटलिस्ट और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक का जो डिवीजन था कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसमें देखिए उसमें हुआ क्या, कैपिटलिस्ट जनरली दे वांट अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन विच देयर शुड बी नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ओके, सो यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है. कि जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा. ऑब्वियसली अगर आप पेट्रोल का डिमांड अगर बढ़ने लगेगा और सप्लाई को लिमिटेड रखें, सप्लाई लिमिटेड अगर रहे और डिमांड बढ़ने लगे,
then obviously the price will increase. ऐसे ही अगर सप्लाई ज्यादा होने लगे और डिमांड उतना ही है तो धीरे धीरे उसका प्राइस इट विल डिक्रीज. सो जो अनडिस्टॉर्टेड ट्रेड होगा, जो फ्री मार्केट ट्रेड होगा, व्हाट इट विल से दैट कि एवरी प्राइस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. जो प्राइस फिक्सेशन है, जो प्राइस डिस्कवरी है, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी. कि किसी गुड का कितना डिमांड हो रहा है और किसी गुड का कितनी सप्लाई है, उसको बेस बना करके इक्विलिब्रियम ले आते हैं, and that equilibrium will decide the price of any commodity. So since there is no role of government in this, okay, there is no role of government in this. Now, if you provide subsidy, then obviously there is a role of government. Means you are artificially creating a price. जैसे subsidized grain जो PDS पे मिलता है, subsidized grain, then you are artificially creating the price. राइस का मान लीजिए, राइस का प्राइस हो गया, वीट का प्राइस 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो, तो ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियली सेट हुआ प्राइस है. तो दिस अमाउंट्स टू ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी. मींस इट क्रिएट्स अ ट्रेड डिस्टॉर्शन इन द इकोनॉमी. तो इसलिए वर्ल्ड जो WTO है वो बोलता है कि ये सब्सिडी अलाउड नहीं है. बट सिंस इंडिया नीड्स टू कंटिन्यू इट्स PDS प्रोग्राम, दैट्स व्हाई since India needs to continue its PDS program, that's why it has asked for some relaxation, like peace clause, some relaxation, and it is a de minimis 10% de minimis clause is there, and they said okay, ठीक है, you can provide this much amount of subsidy unless and until you do not break this threshold. तो ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि सब्सिडी खराब है, and all. Yes, it is not good if you are providing subsidy to the fossil fuel, especially fossil fuel, then it is bad. But if you are providing subsidy to the EV, electric vehicles, then it is good. It is promoting a new technology. You are giving them a proper incubation period to develop. So giving subsidy to EV is good, but giving subsidy to fossil fuel based cars and vehicles, it is bad for the economy, because India has also made some commitment in Glasgow. So your homework is to find out what all commitments India made at Glasgow. Okay. तो these things, so subsidies. तो अब इसमें अगर कुछ डेटा का हम लोग देख ले, पहला हम लोग डेटा क्या देखें कि वर्थ ऑफ 7 ट्रिलियन रुपीज सब्सिडी, वर्थ ऑफ 7 ट्रिलियन रुपीज और 8% ऑफ GDP, which global GDP. Now you can use these things as a point, like if you remember around this. जैसे कि आप जैसे डेटा जब याद करते हैं ना, डेटा को याद करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं. जैसे कि आप इंडिया के GDP, जैसे अब अगर हमको इंडिया का GDP पता है तो उसके आप को बेस बना करके इसको स्टैंडर्ड बना के देख सकते हैं कि more than 2 times of India's GDP, because India's GDP is somewhere around 3.3 trillion dollars. So you can say कि more than 2 times of India's GDP. Likewise, you can learn these type of data. And there are multiple other issues, like most of the countries are spending 6 times of what they have committed in Paris Agreement on fuel subsidy. मतलब अगर वो 100 रुपए कमिट किए थे पेरिस एग्रीमेंट में, तो वो 600 रुपए खर्चा कर रहे हैं अपने फ्यूल को, अपने इकोनॉमी में फ्यूल सब्सिडाइज करने में. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी. व्हाट इज दिस? इट इज हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी मींस क्या होता है कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स एंड प्रीचिंग समथिंग एल्स. सो दिस इज हिपोक्रेसी. सो वन शुड नॉट बी हिपोक्रेट. ओके. So there are multiple things. So these using these reports, you can write your answer. And as we discussed earlier, if you are trying to criticize the government, if you are trying to write some negative aspect of the government, so don't take the responsibility, don't take the fall on yourself. कि खुद नहीं criticize करने लगिए. What you can do, you can utilize the voices, the opinions of the experts. For example, you can say recently World Bank also stated the reservation of this program, or recently World Bank criticized the government of India's this program. तो इससे क्या होगा कि आप खुद नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, आप बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक ने क्रिटिसाइज किया या वर्ल्ड बैंक ने इसे क्वेश्चन किया. सो लाइकवाइज यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन विदाउट कीपिंग योरसेल्फ इन द मिडिल. मींस आप खुद को बचा लेंगे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं. यही करना है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आपको चलाना है इस UPSC में. अगर ये कर लेंगे आप तो समझ लीजिए आपका नंबर अच्छा आएगा. इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर दीजिए, वर्ल्ड बैंक कोट कर दीजिए, IMF कोट कर दीजिए, लेकिन जिस बॉडी को आप कोट कर रहे हैं, दैट बॉडी मस्ट हैव सम लेजिटिमेसी. ऐसा नहीं कि आप किसी चौराहे की किसी बॉडी को बोल दिए कि चौराहे का श्यामू जो है वो बोल रहा था कि यार सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, ऐसा या तो ये नहीं करना है कि चौराहे के पे जो बातचीत होता है उसको आप बीच में ले. नहीं,
आपको कोई पर्टिकुलर एक अच्छा रेपुटेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस बॉडी है, उसको आप कोट करके आप बता सकते हैं कि इंडिया में ये चीजें नहीं सही चल रही हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव। ओके, सो दीज करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ देगा कि बताओ कितना परसेंट सब्सिडी देता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि दे विल नॉट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि $8 ट्रिलियन दे रहा है कि 9 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन की 7 ट्रिलियन, ये नहीं पूछेगा। This news, why this news was important? To open your mind about the subsidies, first thing, and second thing, so that you can use this news in your essay paper, ethics paper, GS1, GS2, GS3, wherever the need is. Wherever the need is, you can utilize this data, because that particular data has been published by World Bank, and World Bank itself is a very reputed institution. Very reputed institution, so you can use its data. And you can, if you are criticizing, if you are writing something against the subsidy, then you can use the World Bank and say, okay, World Bank also recently released a report whereby the subsidy was criticized. So this is your this is your fodder. You can take the fodder from this news. Okay. So another thing we'll discuss today, like non-communicable disease in India. Non-communicable diseases in India. Communicable diseases in India. And why this was in news? Because recently Ministry of Health published a report and a survey sort of, and it depicts that India में बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो ऑलमोस्ट 101 मिलियन इंडिविजुअल जो हैं वो डायबिटिक हैं, 101 मिलियन इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप जैसे ये डेटा आपको मिल गया, यू गॉट दिस डेटा कि 101 मिलियन पीपल आर डायबिटिक, there are multiple, more than 220 million people are pre-diabetic, and all 200 million, more than 200 million people are pre-diabetic, means diabetic एक स्टेज पहले उनको डायबिटीज हो सकता है अगर अपने आप को सुधारेंगे नहीं वो। सो अराउंड 300 मिलियन पीपल जो है वो अभी इस डायबिटिक के उसमें जोन में है। ठीक है, so you got this data. अब now UPSC will not, obviously it will not ask the data okay whether it was 100 million, 200 million, 300 million, it will not ask. What, how you can utilize this current affair news, this current affair in your examination? First thing, you will get a general idea, okay, this much percentage of the population is diabetic. दूसरा चीज, जो non-communicable disease है, it's growing, means it is looming a threat, it is acting as a threat on India. तो देखिए, आप इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि डिजीज एक कम्युनिकेबल होता है और एक नॉन कम्युनिकेबल होता है। दो टाइप की डिजीज है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, कम्युनिकेबल डिजीज में छुआछूत से फैलना जो कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वैसा होता है जो कि आपके लाइफस्टाइल, इसको लाइफस्टाइल डिजीज या क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज क्रॉनिक डिजीज और लाइफस्टाइल। जैसे कि आप वॉक नहीं करते हैं, बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दिस विल लीड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। So ये non-communicable disease is generally associated with the lifestyle. There are other factors also, genetic factor है, बहुत सारा factor है, but it is generally associated with the lifestyle. So this जो development का pattern, इस पे आपको भी क्वेश्चन उठेगा कि जो current development model चल रहा है, जो current development pattern हमारा paradigm है, is it correct for us? The current development paradigm of the city, the current development paradigm that you are witnessing in Delhi, Mumbai, and other metropolitan city, is it correct? Is it leading to a greater happiness? If you take the utilitarian view, आप ethics में पढ़ेंगे, तो क्या ये greater happiness की तरफ ले जा रहा है? So now this question arises कि क्या ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितने लेवल तक हमको कंज्यूमरिज्म में जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए. So all these debates you can just think, okay, this will lead to this because this is a lifestyle disease and people are not getting time because they are engaged, they are busy in their daily mundane routine. They are not getting time to focus on their health, their life and all. So this is the thing. So you got this idea, this report was there, and obviously you can also quote these things in your mains examination. If the question is on health, then obviously you can write the recent report of Ministry of Health stated that more than 100 million people in India are diabetic. So this health and all, ये खराब क्यों है किसी कंट्री के लिए? Because जो health का issue है वो किसको हो रहा है? Human को. So ultimately the human resource is getting जो है decreasing. It is decreasing day by day. अगर आप अपना या population को health maintain नहीं करेंगे, then you will lose your human resource. अगर human resource आप lose करेंगे, then you will not be able to develop. अगर आपके healthy population, you don't have healthy population, then you will not be able to develop. So that's why we need health system, very robust health system. Now this will raise the question on the health system in India.
First, the health system. Second, the lifestyle in India. So, lifestyle about it can be asked in ethics question. It can be asked in society question. Okay, and as far as health is concerned, so you should know about the health sector. What is the expenditure of GDP on the health? What are all included in the health sector? जैसे कि अगर हम ground level पे देखें तो आंगनबाड़ी होते हैं, आंगनबाड़ी ICDS स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये स्कीम, इसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स होते हैं। 0 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है और लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर के लिए होता है। तो ये यहाँ से हमारा जो हेल्थ का जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, हेल्थ इवन बच्चा पैदा होने से पहले ही जो एंटीनेटल प्रीनेटल जो केयर होता है वहां से चालू हो जाता है आंगनबाड़ी का रोल। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है। प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर एम्स है वो हो गए। सेकेंडरी सेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। सो यू मस्ट क्वेश्चन क्योंकि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और आप अगर देखेंगे एक बहुत ही मतलब समझिए कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, यू ऑल विल एग्री कि दिस लाइफस्टाइल डिजीज इज ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, ड्यू टू कंज्यूमरिज्म, ड्यू टू दिस 9 to 5 culture and all, means people are not getting time and involved in all these things. Okay, you agree with this. But then applying this logic, what you will say कि this lifestyle disease must be prevalent in Western countries और developed countries में ज्यादा होना चाहिए, because they are the one who taught us this consumerism, materialism and all. So वहां तो ज्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ कम होना चाहिए. But this is exactly opposite. Developing countries जो है वो more than 70% lifestyle disease जो है वो developing countries में है. And now this raises the question. This raises the question कि why is the case that developing countries are having 70% of the non-communicable disease, जबकि हम लोग का जो non-communicable disease और lifestyle disease कहाँ से हम लोग कॉपी किए हैं? अब exactly 100% सही नहीं है कहना कि हम लोग वहीं से कॉपी किए, but more or less जो है हम उस industrialization pattern पे, consumerism और जो capitalist pattern पे चलते गए. That's why we got this thing. तो लेकिन यहाँ पे एक साथ जो पैरेलल डेवलपमेंट क्या हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज में, विद दिस देयर हेल्थ सेक्टर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज का वो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, बहुत ही इम्प्रूव्ड है. और बहुत इम्प्रूव होने के कारण क्या हो रहा है कि वहां पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है दे आर एबल टू मैनेज. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव नहीं है. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये बड़े लोग की डिजीज होती है, ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ. तो ये लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर जो प्रिपेयर नहीं है अभी. So we need to focus on our health sector. We need to focus on our health sector. Then only we will be able to manage this non-communicable disease first thing. And second, we need to generate awareness. ये अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए FSSAI का देखिए ईट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट एंड ऑल. तो ये कहते हैं कि अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम है, तो अवेयर करना पड़ेगा लोगों को. दीज आर द नेगेटिव थिंग्स. लाइक जो टोबैको पे साइन बना होता है वो भी समझ लीजिए कि एक स्टेप है टुवर्ड्स जनरेटिंग द अवेयरनेस फॉर दिस preventing non-communicable disease. Okay, so if you are reading this news, so you should try to look into the whole picture. If this is your first attempt, you are a fresher, to try to connect the dots, try to think upon, okay, why this non-communicable disease is good or bad for the country, or why it is better than this and worse than this. Thereafter, try to find the associated bodies, associated laws, if there is any law. So उसी समय क्या है, धीरे धीरे आप क्या सोचिए, जानिए, पढ़िए और डॉट्स को लिंक कीजिए. When dots will get connected, then you will find this preparation very easy. So because suppose you are writing some answer. So if you are writing some answer, then in that question, suppose it was written that ki identify, suppose this is the question, identify the challenges in India's health sector, also suggest some reforms. बहुत सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इन इंडिया हेल्थ सेक्टर एंड आल्सो सजेस्ट सम रिफॉर्म्स. सो नाउ इफ यू आर राइटिंग अबाउट द चैलेंजेस, you will give introduction and all, then after you will write the challenges 1 2 3 4 5. Suppose infrastructure, out of pocket expenditure, personnel, lack of trained personnel. Then you will write GDP per cap, this health per capita expenditure जो हमारे हो रहा है. ठीक है, तो you will write all these things. Now if you are writing about the reforms, the way forward reforms, then your reform should reflect these challenges. You are giving, because you have listed out some 4 5 10 problems. Now you are also writing about the reforms, how you will reform it. Yeah, how we can reform it.
Suppose you are writing about these things and you are writing reform entirely different. इससे क्या है कि आपका वो कोहेरेंसी नहीं रहेगा पेपर में. So you will not get good marks, first thing. And second thing, you don't read to remember the reforms and challenges separately. Merely by learning the challenges, you will be able to write the reforms. So whenever you are reading current affair, try to associate these things like this. कि whenever you are reading current affair, अगर वो challenges दिया है तो आप अपने मन में reforms सोचिए कि what all reforms can be there. Okay. So these things are there. So there are multiple means news are there. There are multiple news, but you have to extract what is important for you and what is not important for you. So like this, out of pocket expenditure. One is out of pocket expenditure. This is also a very common issue in health sector, in India's health sector. तो जैसे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम में बहुत सारे स्कीम चलते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब पेशेंट जो है, अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर जो है पर्ची पे दवाई लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन. नाउ यू हैव टू परचेज दैट प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ योर पॉकेट. So this is the cost that you are incurring on your health. So out of pocket expenditure is pretty high in India, and seeing especially in the context of poverty, we out of pocket expenditure should not be that much high. So government is trying to decrease this level. Okay. So this health sector, there are few sectors that are very important. Health sector, education sector, and all. These are, every year one question is there. One question will be there. Okay. अगर नहीं इसमें क्वेश्चन है तो एनीवे आपको एस्से में तो लिखना ही है. मीनिंग ऑफ आउट ऑफ पॉकेट. आउट ऑफ पॉकेट मीन्स इफ यू कितना पैसा, जैसे मान लीजिए आप 1,000 रुपया आपके ऊपर हेल्थ में खर्चा हुआ, एक पर्सन है, मान लीजिए उसके ऊपर 1,000 रुपया खर्चा हुआ उसकी पूरी दवाई में, अगर 1,000 खर्चा हुआ, देन उसमें अगर आपकी जेब से उस 1,000 में से 600 रुपया खर्चा हुआ और 400 रुपया गवर्नमेंट सपोर्ट किया, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना होगा? 600 रुपया होगा. That 600 will be out of pocket. So currently around 67% is the out of pocket expenditure in India. So these are the issues that are important. Every essay you have to discuss about some health problem, education problem, and if you will then present that thought in a very lucid manner in the essay. So for representing the essay, for writing a very good essay, you need to develop a core understanding. Like we discussed about the financial structure of in the lecture starting, the financial structure. So we discussed about the issues revolving around global finance. And if you understand and if you can understand and relate all those things, then you can write 1 or 2 or 3 paragraph about it. But if you are just mugging up, बस नहीं रट्टा लगा लिए, रट्टा लगाने से फिर क्या होगा कि आप कितना रट्टा लगा पाएंगे? मुंह दर्द करने लगेगा रट्टा लगाते लगाते. अब बात समझ, यूपीएससी में क्या है, मुंह दर्द करने लगेगा रट्टा, इतना चीज है रटने के लिए. तो रटना नहीं है, ये जान लीजिए कि एकदम से नो टू रटना, करना क्या है आपको, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. इफ यू आर first timer, then you should first develop the basic understanding of each and every topic. Thereafter you will get a lot more clarity, lot more thought, and then you relate your current affair with basic. अगर आप बेसिक और करंट अफेयर को रिलेट करते हुए चलेंगे तो इससे अच्छा समझ लीजिए कुछ नहीं हो सकता आपको प्रिपरेशन के लिए. फिर क्या होगा कि आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होने लगेगा. ठीक है. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दीज फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक दिस. वी डिस्कस अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल, वी डिस्कस अबाउट दिस वर्ल्ड बैंक का सब्सिडी जो हमारे सब्सिडी के लिए है. देन वी डिस्कस अबाउट दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके. So these are the few important topics that are going on in the current news. Okay. There are multiple other issues, no doubt there are multiple other issues, but initially we are giving it to you it gradually. बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे हम, ताकि आप एक holistic understanding धीरे धीरे आपका develop होने लगे. Now if you have any doubt related to anything, you can ask. Okay. Related to this lecture or related to your preparation in general, whatever you doubt you have, you can ask. इतना सारा डेटा कैसे याद रखें? देखिए, डेटा याद करने का आपको हम 2-4 ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखना है.
अच्छा डेटा देखिए याद कुछ डेटा जो है, डेटा को पहले आप सेग्रीगेट कीजिए, डेटा को आप दो में सेग्रीगेट कीजिए। हाँ एक्सक्यूज मी, डेटा को आप दो पार्ट में सेग्रीगेट कीजिए। कैसे? एक डेटा आपका रहेगा समझ लीजिए अनचेंजिंग नेचर का, अनचेंजिंग नेचर का डेटा रहेगा, और एक डेटा आपका रहेगा चेंजिंग नेचर का। ठीक है, दो पार्ट में आप सेग्रीगेट कर लीजिए। तो अनचेंजिंग नेचर का डेटा कैसा हो जाएगा? सेंसस डेटा। तो जो आपका डिकेडल होता है सेंसस डेटा। एनएफएचएस 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हो गया, ये 4-5 साल में एक बार आता है। वी आर इन कंफ्यूजन, प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग। अच्छा अभी अभी एक एक करके पहले हम डेटा वाला देखते हैं, फिर नेक्स्ट इशू सॉल्व करते हैं। तो जो अनचेंजिंग नेचर का डेटा है ना, जैसे सेंसस हो गया, एनएफएचएस 5 हो गया, एनएफएचएस का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हो गया, तो जो इस टाइप का डेटा है यू शुड स्टार्ट रीडिंग एवरी डे। एक कहीं आप लिख करके चिपका दीजिए। अब ऐसा नहीं पूरा पोथी याद कर लेना है, पोथी इज नॉट रेलेवेंट। व्हाट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट, बिकॉज फर्स्ट यू शुड रिमेंबर कि व्हाई यू आर नीडिंग द डेटा, आपको डेटा क्यों चाहिए वो। तो वो डेटा इसलिए चाहिए कि सो दैट यू कैन सब्सटेंशिएट योर पॉइंट। सपोज इफ यू आर सेइंग मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर एनीमिक और इंडियन वुमेन आर फेसिंग एनीमिया, आप ये एक लाइन में ये लिखते हैं। दूसरा कोई लड़का एक लाइन ऐसा लिखता है कि दूसरा स्टूडेंट ये बोलता है कि मोर देन 50% ऑफ द वुमेन आर एनीमिक, दूसरा लड़का। तीसरा, चलिए इसको हम लिख के बताते हैं कि इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी, मान लीजिए कोई लिखा। फिर लिखा कि मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन आर एनेमिक, एक दूसरा लड़का ये लिखा। थर्ड स्टूडेंट रोट 50% ऑफ इंडियन वुमेन आर एनेमिक, ठीक। चौथा लड़का लिख 50% ऑफ इंडियन वुमेन आर एनेमिक, और इट हैज दे ही रोट एनएफएचएस 5। देखिए पहला जो था वुमेन, इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, एक जनरल स्टेटमेंट है, गलत नहीं है, सही है। मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन आर एनेमिक, ये थोड़ा सा और अच्छा बता रहा है कि मोस्ट में ज्यादातर वुमेन जो है दे आर एनेमिक। ना 50% ऑफ द इंडियन, एक डेटा दे दिया गया। फिर डेटा के साथ क्या हो गया, आप उसमें रिसोर्स भी दे दिए, आप समझे। लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे परफेक्ट है, मींस लास्ट वाला पॉइंट जो स्टेटमेंट है इज ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस। सो those data that are in the nature of permanency, means permanent नेचर का है, you should try to read it every day। आप एक बना लीजिए, जैसे सेंसस का डेटा कैसे आप सेंसस देखिए होने वाला है, ठीक है, तो लेकिन जब तक आप प्रिपेयर अगले साल देंगे तो शायद ही सेंसस का डेटा रिलीज हो। तो अभी जो पुराना सेंसस है उसका डेटा आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, पॉपुलेशन और थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं आप, लेकिन एनएफएचएस 5 का डेटा आप अच्छे से याद कर लीजिए। एनएफएचएस 5 में वुमेन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड 2-3 डेटा याद कर लीजिए, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, एमएमआर एंड ऑल। तो कुछ जो परमानेंट नेचर का डेटा है उसको आपको अभी से शुरू कर देना है याद करना। फिर कुछ जो है चेंजिंग नेचर का डेटा होता है, को एग्जैक्टली अभी याद नहीं करना है, वो आपको काम आएगा मेंस में। तो लेकिन चेंजिंग नेचर, जैसे मान लीजिए इंडिया का जीडीपी, इंडिया का जीडीपी इज चेंजिंग नेचर, क्वांटम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा जीडीपी का बात कर रहे हैं। सो जीडीपी का अगर हम बात करें तो दिस जीडीपी आप एक क्वांटम याद कर लीजिए, एग्जैक्ट आपको 3.1, 3.2 था, 3.2.9 था, 3.6 था, ये भी जरूरत नहीं है। आप कर लीजिए अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर, आप इतना याद कर लीजिए। तो एक जो है ना अनचेंजिंग नेचर का डेटा आप एग्जैक्टली याद करते चलेंगे, चेंजिंग नेचर का डेटा जो है आप अराउंड करके याद करेंगे। अब जब इकोनॉमिक्स में आप एक पर्टिकुलर डेटा याद कर लेते हैं, जैसे जीडीपी याद कर लिए, तो इसी के अराउंड उसको बेस बना करके आप क्या कीजिए, बाकी डेटा याद कीजिए। जैसे सब्सिडी कितना दिया जा रहा है, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करते करते आपको एक ट्रिक बन जाएगा कि आप कैसे ये डेटा याद करते हैं। लेकिन शुरुआत में एक क्वांटम, ऐसा ना हो कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि वेदर इंडिया जीडीपी इज 10 ट्रिलियन डॉलर और 5 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन। एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट इंडियाज जीडीपी इज अराउंड 3 ट्रिलियन। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस, देन हाफ द गेम इज वन। और जो एग्जैक्ट डेटा है यू विल लर्न और मग इट अप ड्यूरिंग योर मेंस एग्जामिनेशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मेंस एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट डेटा जरूरत है, you will learn it, but right now you should have some broad understanding about the data, कि okay, this is the quantum of inflation. If somebody says inflation is 20%, then you should just give attention कि 20% कैसे हो सकता है।
because inflation is around in the range of 4, 5, 6, 7% in India. Okay. Likewise, if करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा आ गया, किसी भी तरीके का डेटा आ गया, तो उसको आप एक अटेंशन रहे आपका क्या इस रेंज में डेटा रहता है. होप यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू रीड द डेटा. ओके, नाउ वी आर इन द कंफ्यूजन प्रिपरेशन. सर इतना डेटा है सर. As per the day, how many subjects should we cover? Please help to know the original sir concept, classwork, homework plus extra, but how much extra? Okay. So you are confused about how many subjects to cover. So look, this initially I talked about in the first class, this Dunning-Kruger effect. This is very relevant for UPSC aspirants. ये बहुत relevant है. वो बनाया होगा कहीं और, लेकिन हमारे UPSC के लिए तो बहुत relevant है. शुरुआत में जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे इतना मोटिवेशन आपका जाएगा. देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये हार्ड वर्क है और ये आपका मोटिवेशन है. ये ग्राफ मोटिवेशन बताता है, ये आपको वर्क बताता है. तो शुरुआत में आप मेहनत किए, आपका मोटिवेशन लेवल चरम पे पहुंच गया एकदम यहाँ तक. फिर आप वर्क करते गए, फिर क्या होगा, जैसे से आपका नॉलेज, वर्क मतलब है नॉलेज, फिर आप जब नॉलेज आपको और थोड़ा मिलेगा तो आपका मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ तक आपको लगेगा आप सब कुछ जानते हैं, आप ही तो भगवान है, अपनिश भगवान है. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि आप जब और नॉलेज करने लगेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अरे आई डोंट नो मेनी थिंग्स, अभी बहुत सारा चीज बचा. तो आप फिर, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज जब आपको बढ़ेगा, फिर आप एक स्टेबल नॉलेज की तरफ और स्टेबल कॉन्फिडेंस की तरफ आ जाएंगे. ये जो स्टेज होता है, ये क्विट करने का स्टेज होता है. ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ ही क्विट करते हैं, क्योंकि उनको डिमोटिवेशन लगता है, करे यार अब इसको कहते हैं वैली ऑफ डेथ, मतलब अब उसमें आप छोड़ देंगे, यहाँ पे आप छोड़ देंगे. तो ये बता क्यों रहे हैं आपको? देखिए इसलिए बता रहे हैं कि जो आप सब्जेक्ट है, कि कितना सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े, कितना सब्जेक्ट एक दिन में ना पढ़े, इट डिपेंड्स ऑन योर, फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओन कंटेक्स्ट, कि आप कैसा चाहते हैं. देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे जस्ट पिक टू सब्जेक्ट्स प्लस न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स, ये हो गया. और अगर वो ऑप्शनल की क्लास कर रहे हैं तो वो ऑप्शनल पढ़ेंगे, तो ऑप्शनल की क्लास करेंगे, मतलब वो सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे. ठीक है वो. तो अगर आप इसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे दो सब्जेक्ट कैसा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑप्शनल की क्लास अटेंड करने के बाद उसको रिवाइज भी करना चाहते हो, उसको एक सब्जेक्ट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट. तो अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता था कि हम एक से दो सब्जेक्ट पढ़ते थे, जब एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते थे, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ने लगेंगे ना, तो 2-3 घंटे तक तो अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा, उससे इनपुट आपको मिलेगा. लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर क्या होता है ना, वो आप एफर्ट उतना ही डाल रहे हैं, लेकिन जो है ना, धीरे धीरे जो आपका आउटपुट है वो घटता जाएगा उस सब्जेक्ट में. उस दिन की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे में धीरे धीरे आउटपुट आपका घट जाएगा. तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपका माइंड अब वही आर्टिकल, वही पॉलिटी, वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपका घटता जाएगा. लेकिन 2-3 घंटे टाइम देने से क्या होता है, एक कोहेरेंट, एक चंक ऑफ थॉट, चंक ऑफ कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं. वहां तक तो बहुत अच्छा है कि एक चंक ऑफ कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप फोर्स मत कीजिए. 2-3 घंटे बाद क्या कीजिए, यू शुड चेंज द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जैसे आप करंट अफेयर उठा लिए, 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़े, फिर उसके बाद करंट अफेयर उठा लिए, क्योंकि आप यूपीएससी में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपका 3 घंटे से ज्यादा लगेगा समझने में, ये जान लीजिए. कोई वैसा पर्टिकुलर एक कंसेप्ट नहीं है कि आप 3 घंटे ज्यादा समझेंगे उसको. ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर उठा लिए, 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिए. करंट अफेयर के बाद क्या कीजिए, आप फिर कोई एक दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए. लेकिन अगर आप एक टफ सब्जेक्ट उठा रहे हैं, मान लीजिए एक आप उठा रहे हैं जो आपको, आपके लिए टफ है, मान लीजिए आपको पॉलिटी टफ लगता है, तो अगर आप पॉलिटी उठा रहे हैं और आपको हिस्ट्री अगर आसान लगता है, तो दूसरा सब्जेक्ट आप कीजिए हिस्ट्री के साथ मैच कर दीजिए. दूसरा दो हिस्ट्री कब रहेगा, जो हिस्ट्री सिर्फ शाम के समय, मतलब अगर आप सुबह जो जो है ना कि विश जो है सुबह पीना है, द हार्ड वर्क शुड बी डन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, कि उसको डन एंड डस्टेड कीजिए, करंट अफेयर पढ़िए, फिर जो गैप आपका बचता है इधर शाम वाला, उसमें आप जो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है उसको आप उठाइए. आपको ऑप्शनल अगर इसी में इंट्रोड्यूस करना है, तो अगर आप 3 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 2 घंटे करंट और 3 घंटे ये पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटा आपका हो गया. अगर आप 2 से 3 घंटे ऑप्शनल ले रहे हैं, तो मोर देन इनफ पढ़ाई कर ले रहे हैं आप, ये जान लीजिए. और अगर आप ऑप्शनल की क्लास ले रहे हैं, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि 2 घंटे इस सब्जेक्ट को, 2 घंटे करंट को, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को, 6 घंटा, 3 घंटा आप ऑप्शनल क्लास कर लीजिए, 9 घंटा. 1 घंटा मान लीजिए आपको मन कर रहा है ऑप्शनल रिवाइज करने का या कुछ करने का, तो वो कर लीजिए. लेकिन इस 2 घंटे में ये ध्यान रखिए, इस 2 घंटे में 1 hour must be for revision and 1 hour for learning the new concept. ये ध्यान रखिएगा, 1 hour must be revision and 1 hour learning new concept. जब अगर रिवीजन, यूज इट और लूज इट, ये जान लीजिए, यूज इट और लूज इट, यही कंसेप्ट रखिए.
रिवीजन अगर नहीं की, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द, यू आर रीडिंग द पॉलिटी, यू आर रीडिंग द हिस्ट्री बुक, यू आर रीडिंग दिस करंट अफेयर, यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर only due to the fact that you are trying to clear UPSC examination. Your end goal is to crack UPSC examination, not to read history, not to read polity. ये आपका एंड गोल, अगर आपका एंड गोल था हिस्ट्री पढ़ने का तो यू कुड हैव जॉइंड मास्टर्स इन हिस्ट्री, पीएचडी कर लेते आप हिस्ट्री में। लेकिन आपका एंड गोल हिस्ट्री पढ़ने का नहीं है, आपका एंड गोल है यूपीएससी निकालने का। तो अगर आप एंड गोल नहीं रीच कर रहे हैं तो ये पढ़ना आपका सब बेकार हो जाएगा। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं और अगर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इफ यू डोंट रिवाइज देन यू विल लूज 70 to 80 to 90% कंसेप्ट आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ये ह्यूमन ब्रेन है, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ये जो दिमाग से उड़ेगा फिर आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो जो चीज आप कर रहे हैं आज आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अगर उसको रिवाइज करके उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, मतलब उसका पूरा प्रॉपर बैनामा करा लीजिए कि अभी अब मेरा हो गया। अभी डोंट लूज इट क्योंकि अब चलो हम 4 दिन बाद रिवाइज करेंगे, 5 दिन बाद रिवाइज करेंगे, नहीं, उसको रिवाइज करके पूरा अपने हिस्से में ले लीजिए। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन में कुछ चीजें ऐसी होंगी ना दैट शुड रिमेन इन योर माइंड फॉर एवर, मतलब कि राह चलता आदमी आपसे पूछ लिया कि ये है तो हाँ ये पता है हमको, बट द निटिग्रिटी यू डोंट नो। ओके, जैसे कि मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछ दिया तो अच्छा यू शुड एटलीस्ट नो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, लेकिन निटिग्रिटी इसमें रीजन देना होता है कि नहीं देना होता, कितने एमपी का, ये आप कंफ्यूज हैं इसमें। तो ये इतना तक चलता है, इतना तक चलता है, लेकिन ये नहीं कि आपको कोई पूछे कि व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपको पता ही ना हो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। हु इज प्रेसिडेंट या गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है तो आपको पता ही ना गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है। तो ये जो जो माइक्रो चीजें आप भले भूल सकते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल का अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक के बारे में आपको होना चाहिए। तो योर गोल शुड बी दैट मैक्रो लेवल का अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक के बारे में है, और जो माइक्रो चीज आप भूलेंगे यू विल प्रिपेयर, व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स ऑब्वियसली यू विल रिवाइज फॉर 2-3 मंथ्स। तो 2-3 महीने में आप क्या करेंगे, यही माइक्रो चीजें पढ़ेंगे। ओके, राइट नाउ योर गोल शुड बी दैट कि मैक्रो लेवल पे सारी चीजें आपको पता है, मैक्रो लेवल पे सारा आपको आइडिया है, कंसेप्ट का आइडिया है। हाँ, निटिग्रिटी डेटा या कुछ फैक्ट आपको एग्जैक्टली नहीं पता, बट यू हैव सम नॉलेज अबाउट ओके this could be the range around this to this percent could be the range. You have some knowledge about a particular concept. If they talk about this orographic rainfall, geography में पूछ लिया क्या है, तो you have some idea. If they are saying about talking about this monsoon, you have some idea. If they are talking about this El Nino, La Nina, you have some basic idea क्योंकि पता है ये। तो इस तरीके से ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक दिन में सब याद कर लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है इस समय। और डोंट ट्राई टू डू दिस थिंग कि आज के दिन में ही हम सब पढ़ करके सब कंठस्थ करके दिमाग भर लेंगे, नहीं हो सकता। आपको जो बैनामा कराने की जो बात हो रही है, जो ये हो रहा है कि आप रिवाइज करेंगे, उस रिवीजन में आप क्या करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उस टॉपिक का, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग सो दैट व्हेन यू रीड a term in the newspaper, suppose you read this एकमेन ट्रांसपोर्ट, एक ज्योग्राफी में टर्म है एकमेन ट्रांसपोर्ट, तो अगर आपको पता ही नहीं कि एकमेन ट्रांसपोर्ट होता क्या है तो एक इशू है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि एकमेन ट्रांसपोर्ट वाज समथिंग रिलेटेड टू सी शोर, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, कुछ अगर आपको हल्का फुल्का भी पता है तो हाँ ठीक, आपका प्रिपरेशन सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि ये जो निटी-ग्रिटी चीजें हैं यू विल ग्रेजुअली यू विल लर्न, यू विल रिमेंबर विद द रिवीजन। तो लेकिन रिवीजन इज द मस्ट। देखिए रिवीजन 40%, इवन अभी तो कहेंगे 50% आप रिवाइज कीजिए, अपना अपना टाइम दीजिए। धीरे धीरे सिलेबस बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बिल्कुल बंद घबराइए। क्योंकि जान लीजिए 100% पढ़ करके 20% याद रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। 100% पढ़ के 20% याद रखना, एंड इफ यू आर रीडिंग 50% ओनली एंड रिटेनिंग 40% तो आप ज्यादा नंबर पाएंगे। 40% अगर रिटेन कर रहे हैं 50% पढ़ के ज्यादा नंबर पाएंगे, देन दैट 100% पढ़ के 20% भूल जा रहे हैं। और इंसान का फितरत है भूलना, ये जान लीजिए, अच्छे अच्छों को भूल जाता है इंसान, तो ये तो सिलेबस है, ठीक है। तो इंसान का फितरत है भूलना, तो आप भूल लेंगे, ये तो गिवन है। सो यू शुड स्टिक विद रिवीजन, रिवीजन इज द की। ओके, सो आई होप कि आप रिवाइज करेंगे। बिना रिवीजन के देखिए दाल नहीं गलने वाली, ध्यान रखिएगा। आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ करंट अफेयर रिवीजन, आई एम नॉट गेटिंग how to make small notes of current affairs, which approach should I follow। देखिए करंट अफेयर का अगर अभी आप बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर का नोट्स अगर अभी आपको बनाना है तो आपको yesterday only I discussed कि start from this, whenever you are reading any article, whenever you are reading any editorial, just write what all 10 new things I learned from this editorial. Write this question, 10 new things I learned from this editorial or this issue, 1 2 3 4, और उसको तो अपने भाषा में लिखिए कि ये सीखिए आप, ये सीखिए, ये सीखिए, ये सीखिए, बस इतना आप कर लीजिए। यू विल गेट टू नो हाउ यू विल मेक नोट्स। आपको 15 दिन में आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन ओनली
आई विल रिकमेंड कि आप नोट्स बनाइए। और ये तो बोलने की जरूरत भी नहीं है कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए, मतलब ये हम बोल भी नहीं रहे हैं कि अगर हमको ये बोलना पड़े आपसे कि आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए तो ये पाप है, समझ लीजिए। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको सिलेबस तो पता ही होना चाहिए अपना, ठीक है। So 10 things what you all read in this newspaper. Okay. Sir, we are having NCERT classes on Saturday and Sunday of a particular subject, say economics. Then in the following week, Monday to Friday, we have to learn it up. But sometimes after the week or two, I feel like forgetting the concepts to cope up with that. Sir, cause something draining the confidence. Okay. Means आप सैटरडे संडे को क्लास होता है, आप रिवाइज करते हैं, फिर आपको एक दो हफ्ते बाद भूल जाते हैं आप। तो ये तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। अब बोले, अब आप मैसेज कीजिए सर हमको कभी कभी दुख होता है, कभी कभी खुशी होता है, ये तो सबके साथ होता है। तो ये जान लीजिए कि यूनिवर्सल चीज है कि भूलना है ही, ये तय है भूलना है या भूलेंगे आप। बेसिक बेसिक, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप भूल क्या रहे हैं। आप डेटा भूल जा रहे हैं कि कंसेप्ट भूल जा रहे हैं पूरा। अगर आप कंसेप्ट भूल जा रहे हैं तब तो ये प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, अगर आप कंसेप्ट, आप जीडीपी को अच्छे से पढ़ें कि जीडीपी होता क्या है, और आप फिर आपसे 3 हफ्ते बाद कोई पूछा कि जीडीपी क्या है, तो आप उसको बोल रहे हैं कि गधा दोस्त प्रोग्राम, कुछ इस टाइप से अगर उसका आप कर रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है। इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। बट इफ यू नो, अच्छा जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अगर आपको इतना तक पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ना, अगर आपसे कोई पूछे कि जीडीपी का बेस ईयर क्या है, अगर आप ये भूल जा रहे हैं तो चलिए मानते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अब नए पुराने जीडीपी में डिफरेंस क्या था, ठीक है, तब आप जो है यहाँ पे अगर आप भूल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी अगर आप पढ़े हैं तो यू नो अबाउट दिस जीडीपी। कंसेप्ट ही भूल जा रहे हैं अगर आप जीडीपी का इशू। ओके, तो इसको इस तरीके से भूलना नहीं है। होप यू विल लाइक। सो हैव अ गुड डे।